السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں انس اور آپ دیکھ رہے ہیں انس ٹی وی۔ دوستوں، آج میں آپ کو دنیا کے 10 سب سے زیادہ پیسے لینے والے کھلاڑیوں کے نام بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو نمبر 10 پہ آتے ہیں یوراج سنگھ، جن کا تعلق انڈین کرکٹ ٹیم سے ہے۔ ان کی 2020 میں کل آمدنی 3.5 ملین ڈالر ہے، جس کو انڈین روپیز سے کنورٹ کریں تو 23 کروڑ 75 لاکھ بنتے ہیں۔ 2002 کے بعد ہندوستانی ٹیم کے عروج میں اس 38 سالہ بلے باز کی شراکت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کرکٹ کے بہترین ہارڈ ہٹروں میں سے ایک سمجھے جانے والے یوراج سنگھ نے 6 میں چھکے لگانے کے بعد میڈیا میں ایک گونج پیدا کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کے 2011 ورلڈ کپ اور 2007 کے T20 ورلڈ کپ کی فتح میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کینسر سے لڑنے کے بعد ان کی شاندار واپسی کے لیے تعریفیں بھی حاصل کی۔ انہوں نے حال ہی میں 9 جون 2019 کو انٹرنیشنل کرکٹ سے سبکدوشی کا اعلان کیا تھا۔ حال ہی میں BCCI نے یوراج سنگھ کا مرکزی معاہدہ ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ پچھلی IPL نیلامی میں کنگز الیون پنجاب نے انہیں صرف 2 کروڑ انڈین روپیز میں خریدا تھا۔ تاہم یہ IPL 2020 میں ممبئی انڈینز کے لیے کھیلیں گے۔ اس سال انہوں نے تقریباً 35 لاکھ ڈالر کمائے ہیں، جن کی بڑی وجہ ان کی توثیق کے معاہدوں کی وجہ سے ہے۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس آتے ہیں مائیکل کلارک، جو کہ آسٹریلیا کی ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی 2020 میں کل آمدنی 3.9 ملین ڈالر ہوئی، جس کو انڈین روپیز میں کنورٹ کریں 26 کروڑ 46 لاکھ بنتے ہیں۔ کرکٹ ٹیم کے اب تک کے سب سے بڑے کامیاب کپتان میں سے ایک، کلارک 2020 میں سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والے کرکٹرز کی فہرست میں 9ویں نمبر پر ہے۔ ورلڈ کپ جیتنے والی آسی نے اپنے ایام کے دوران آسٹریلیا کھلاڑیوں میں سے ایک بہترین کھلاڑی بننے کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے 2015 میں ICC کرکٹ ورلڈ کپ کو محفوظ بنانے کے لیے ایگی گرینز کی مدد کی۔ اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے بین الاقوامی سرکٹ سے سبکدوشی کا اعلان کیا۔ تاہم یہ متعدد گھریلو ٹیموں جیسے پونے وارریئرز اور سڈنی تھنڈر کے لیے کھیلے۔ فعال سپورٹر سرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد مائیکل کلارک نے بطور مبصر اور کرکٹ تجزیہ کار اپنا نام روشن کیا۔ انہوں نے اپنی کفالت کے متعدد سودوں کے ذریعے اس سال تقریباً 3.9 ملین کی کمائی کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کئی کھیلوں کے چیلنج کے لیے کرکٹ کے پنڈت کی حیثیت سے کافی رقم بھی کماتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر آتے ہیں گوتم گمبھیر، جو کہ انڈین ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ دہلی کے دارالحکومت میں سے ہے۔ 37 سالہ ہندوستانی بلے باز اس وقت 2020 میں سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والے کرکٹرز کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے۔ دہلی کے لیے آندھرا کے خلاف آخری رنجی ٹرافی میچ کھیلنے کے بعد گوتم گمبھیر نے حال ہی میں 3 دسمبر 2018 کو ہر طرح کے کرکٹ سے سبکدوشی کا اعلان کیا تھا۔ اکثر اوقات کرکٹ کے بہترین اوپنر کی حیثیت سے مشہور ہونے والے گمبھیر نے IPL میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کے لیے اپنی کپتانی کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ IPL کی فرنچائز دہلی کیپٹل نے 2018 میں اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے صرف 0.41 ملین ڈالر کی ادائیگی کی۔ اگلا سال تقریباً 794.79 ملین کمانے میں کامیاب ہو گئے۔ زیادہ تر ان کی توثیق کے معاہدوں کی وجہ سے یہ اتنے کما سکے۔ 7ویں نمبر پہ آتے ہیں شعیب واٹسن، جو کہ آسٹریلین ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ آسٹریلیا، چنئی سپر کنگز اور کوئٹہ گلیڈیئرز کے لیے کھیلے، جن کی 2020 میں کل آمدنی 5.55 ملین ڈالر ہوئی، جو انڈین روپیز میں 37 کروڑ 32 لاکھ بنتے ہیں۔ تمام وقت کے بہترین آل راؤنڈروں میں سے ایک شعیب واٹسن نے چنئی سپر کنگز کو IPL 2018 جیتنے میں مدد فراہم کی، اور اس لیجنڈری کرکٹر نے بھی 2020 میں سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والے کرکٹرز کی فہرست میں 7ویں نمبر حاصل کیا۔ اس کی کل آمدنی تقریباً 5.5 ملین ہے۔ شعیب واٹسن نے 2020 میں IPL کی فرنچائز چنئی سپر کنگز کے ساتھ اپنے معاہدے کے ذریعے
$0.59 मिलियन कमाया था। इन्होंने कोयटा ग्लेडियर्स के पीएसएल के जरिए $0.15 मिलियन कमाए। इसके अलावा इन्होंने बग मैश क्लिप्स सिडनी थंडर से 0.5 मिलियन भी कमाए। इसके अलावा साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस साल अपनी मुत्तहिद तौसीक से तकरीबन $4.26 मिलियन कमाए। क्रिकेट के अलावा वॉटसन कई मीडिया हाउसेस के लिए भी अक्सर खेलों के कॉलम लिखते हैं। तो छठे नंबर पर आते हैं बूम बूम अफरीदी यानी शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तानी टीम से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी 2020 में कुल आमदनी $5.8 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 39 करोड़ 36 लाख बनते हैं। वनडे में अपनी तेज तरीन सेंचुरियों की वजह से जाने जाते हैं और अब तक दुनिया के सबसे बड़े छक्के लग चुके हैं। शाहिद अफरीदी आलमी क्रिकेट में नुमाया पाकिस्तानी शख्सियत में शामिल है। अक्सर क्रिकेटर इनको लाला के नाम से जानते हैं। क्रिकेट की दुनिया भी अपने हट धर्मी से बैटिंग के अंदाज के लिए बूम बूम के नाम से जानती है। इन्होंने हाल ही में 31 मई 2018 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड 11 के लिए आखिरी खेल खेलने के बाद इंटरनेशनल सर्किट से सबकदोशी का ऐलान किया था। शाहिद अफरीदी इस वक्त पीएसएल की टीम कराची किंग्स और बीपीएल फ्रेंचाइज ढाका के डायनामाइट्स के लिए खेल रहे हैं। इन्होंने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के इफ्तिताही सीजन में पुख्तिया पिटलर्स के लिए खेलते हुए काफ़ी पैसा कमाया था। अहम इसकी तायद में इस साल तकरीबन $5.42 मिलियन की शराकत हुई। इस तरह वो 2020 में छठे सबसे ज़्यादा मुआवजा हासिल करने वाले क्रिकेटर्स बन गए। अफरीदी इस वक्त मुत्तहिद इंसानी वजूहात की तायद के लिए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन चला रहे हैं। पाँचवें नंबर पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग, जिनका ताल्लुक इंडियन टीम से आता है। इन्होंने 2020 में कुल आमदनी $6.1 मिलियन कमाए, जो इंडियन रुपीस में 41 करोड़ 39 लाख बनते हैं। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट के बेहतरीन हार्ड हिटर्स में से एक है। अपने दिन के दौरान बैटिंग में कुछ बेहतरीन इनिंग्स स्कोर करने की वजह से शोहरत हासिल कर चुके हैं और इस साल अपनी इनकम 6.1 मिलियन की आमदनी के साथ वो 2020 में सबसे ज़्यादा मुआवजा हासिल करने वाले क्रिकेटर्स की फुर्सत में पाँचवें नंबर पर है। क्रिकेट के अलावा अब वो हिंदुस्तान के मैचों में बतौर मेहमान कमेंटेटर्स भी काम करते हैं। सहवाग ने आखिरी बार आईपीएल की फ्रेंचाइज किंग्स 11 पंजाब की कोचिंग की थी और 2018 के सीजन में अपनी तनख्वाह के तौर पर तकरीबन 1 करोड़ इंडियन रुपए हासिल किए थे। लेकिन इस साल इनकी ज़्यादा कमाई इनके तौसीक के मुआहदों से हुई है। चौथे नंबर पे जो आते हैं वो एबी डिविलियर्स है, जो कि जनूबी अफ्रीका की टीम से ताल्लुक़ रखते हैं। 2020 में कुल आमदनी $6.4 मिलियन है इनकी, जो कि इंडियन रुपीस में 43 करोड़ 43 लाख बनते हैं। नाकाबिले यकीन हद तक बासलाहियत एबी डिविलियर जनूबी अफ्रीका में अब तक तैयार किए जाने वाले बेहतरीन क्रिकेटर्स की सलाहियतों में से एक के तौर पर जाने जाते हैं और इस साल मजमूई तौर पर $6.4 मिलियन की आमदनी के साथ वो 2020 में सबसे ज़्यादा मुआवजा हासिल करने वाले क्रिकेटर्स की फुर्सत में चौथे नंबर पर है। लीग ने हाल में ऐलान किया था कि वो 2020 में पीएसएल के चौथे एडिशन का हिस्सा बन जाएंगे। आईपीएल फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बंगाल के साथ अपने वायदे से तकरीबन $1.6 मिलियन कमाने के अलावा एबी डिविलियर्स ने भी जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने मरकजी मुआहदे के जरिए तकरीबन 0.8 मिलियन की कमाई की, लेकिन इस साल इसकी तौसीक के सौदों के जरिए करीब $4 मिलियन आए। तीसरे नंबर पर क्रिस गिल आते हैं। 2020 में कुल आमदनी $7.5 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 50 करोड़ 79 लाख बनती है। क्रिस गिल, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम से ताल्लुक़ रखते हैं, T20 के अब तक के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक क्रिस गिल इस वक्त 2020 में सबसे ज़्यादा मुआवजा हासिल करने वाले क्रिकेटर्स की फुर्सत में तीसरी पोजीशन पर है। वो वेस्ट इंडीज की कौमी टीम का बाकायदा हिस्सा नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर T20 लीग्स खेलते हुए अपने पैसे कमाते हैं। दुनिया भर में गिल वाहिद
खिलाड़ी है जिसने 10,000 से ज्यादा T20 रन्स बनाए, जबकि मुत्तहिद डोमेस्टिक लीगों के लिए खेलते हैं। कोई शक नहीं कि वो अब भी अपनी फ्रेंचाइज टीमों के लिए एक बनी है। आईपीएल की फ्रेंचाइज किंग्स 11 पंजाब ने क्रिस गेल को उनकी कीमत में 2 करोड़ इंडियन रुपीस की कीमत हासिल की। इसके अलावा वो पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान एपीएल की जानिब से बर्क्स लेजेंड और मजारसी सुपर लीग के क्लब जोजी स्टार्स के लिए खेलते हुए बहुत ज़्यादा रकम कमाते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर कमाई तौसीक के बड़ी फुर्सत से हुई है। इसके अलावा इन्होंने 2015 में डी क्रिस गेल अकेडमी भी कायम की। दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर MS धोनी आते हैं, जो कि इंडियन टीम से ताल्लुक़ रखते हैं। 2020 में कुल आमदनी $21.7 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 147 करोड़ 36 लाख बनते हैं। 2014 में फोर्ब्स फुर्सत में सबसे ज़्यादा 100 पैसे कमाने वाले 100 खिलाड़ियों की फुर्सत में वो अब तक के वाहिद क्रिकेटर हैं जो बैनुल अक़वामी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इनकी ब्रांड वैल्यू में नुमाया तौर पर कम हो गए हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में MS धोनी को एक ज़बरा का सालाना मुआहिदा पेश किया, जिससे इस साल 5 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी होगी। इसके अलावा वो अपनी मौजूदा आईपीएल फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स से भी तकरीबन 15 करोड़ तनख्वाह लेते हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े फनशेरों में से एक धोनी अपनी तौसीक के सौदे से अपनी ज़्यादातर आमदनी हासिल करते हैं। दुनिया के नंबर 1 सबसे ज़्यादा मुआवजा हासिल करने वाले विराट कोहली है, जो कि इंडियन टीम से ताल्लुक़ रखते हैं। 2020 में कुल आमदनी $24 मिलियन हुई है, जो कि इंडियन रुपीस में 162 करोड़ 87 लाख बनते हैं। हिंदुस्तानी कप्तान वाहिद क्रिकेटर है जो इस साल के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ियों की फुर्सत में शामिल किए गए हैं, और इस साल मजमूई तौर पर $24 मिलियन से ज़्यादा की आमदनी के साथ वो 2020 में सबसे ज़्यादा मुआवजा हासिल करने वाले क्रिकेटर्स की फुर्सत में है। वो वाहिद मुतहरिक क्रिकेटर है जिसके ट्विटर के 25 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। विराट कोहली ने हाल ही में बीसीसीआई के साथ A+ कैटेगरी मरकज़ी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे इस साल इन्हें $10 लाख से ज़्यादा की आमदनी होगी। इसके अलावा इन्होंने आईपीएल के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ 2.6 मिलियन की हैरत अंगेज सालाना तनख्वाह के लिए एक बेहतर मुआहिदा पर भी दस्तखत किए, लेकिन बेशतर कमाई तौसीक की कभी ना ख़त्म होने वाली फुर्सत से होती है। तो ये थे वो दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा पैसे यानी मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।